My name is Paurush Sood and I have graduated in Electronics and Electrical Communication Engineering from IIT Kharagpur with a dual degree course. Post that, I have worked as a software engineer in Texas Instruments for 1.5 years. So in this video, I'm going to talk about how I prepared for the interview, what I feel are the most important points that we need to keep in mind while preparing for the interview and giving the interview as well. So before entering the interview room, I knocked on the door and then I asked for permission. And they said, you can come in. And then I came in. The chair was sitting in front of me, so I wished the chair first. Then I wished the lady member, and then I wished the rest of the members of the board. And then I came and stood next to the chair. So they asked me to sit. I sat. Before sitting, I opened one button of my blazer and sat. Then I was wearing a mask. So the chair told me to be comfortable and asked me whether I had any COVID symptoms or not. I said I did not, and so he asked me to remove my mask and put it on the table. So that's what I did. After that, the chair told me that this interview is a conversation and we did not worry about things that we do not know, because any person does not know everything. So just answer what you know and be honest about what you don't know. So and after that, I was asked to introduce myself, mainly my educational background and work experience, if any. So this is how I introduced myself. My name is Paurush Sood. I have done my BTech and MTech dual degree in Electronics and Electrical Communication Engineering from IIT Kharagpur. I am a pass out of 2020, post which I worked as an embedded software engineer in a company called Texas Instruments for 1.5 years. I am currently on a sabbatical. Then the chair asked me about my sabbatical and I answered him. After which the interview process started. So the chair asked me questions first, then the chair told the next member to ask and so on. So it went off like this. हमारी इंटरव्यू प्रिपरेशन में मेरे को लगता है कि टोटल 5 की एलिमेंट्स होते हैं एंड इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले एप्टीट्यूड का मतलब होता है हमारी नॉलेज, हमारी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कैसी है, हमारी इंटेलिजेंस दिख रही है या नहीं. तो एप्टीट्यूड में सबसे मेन हमारा जो फीचर होता है वो होता है डैफ, विच इज़ द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. अब जो हमारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट आवर पेरेंट्स डू, व्हाट द इनकम ऑफ आवर पेरेंट्स इज, वेयर वी लिव, what subjects we have done in class 10 and class 12, what were our scores in class 10 and class 12 and our college. एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हमारी हॉबीज़ क्या हैं, हमारे एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या हैं, हमने कोई स्पोर्ट्स खेले हैं या नहीं, एंड हमारी हॉबीज़ तो ऑलरेडी हमने बात कर ली, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह हमने क्या कॉलेज में या कभी भी प्रेजेंट करी हैं. इसके अलावा हमें अपनी सर्विस प्रेफरेंसेस भी भरनी होती हैं. अराउंड 20 सर्विसेज थी मेरे टाइम पे कि हमें पहले IAS प्रेफर करना है, फिर जो भी हमारा है, एंड IAS और IPS के लिए हमें अपने केडर्स भी भरने होते हैं. तो काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म होता है एंड हमें बहुत ध्यान से इस फॉर्म को भरना होता है, क्योंकि यही फॉर्म से मेजरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस इन दी इंटरव्यू. अब कई बार ऐसा भी होता है कि इससे क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, जैसे मेरे केस में बहुत कम क्वेश्चंस आए थे, बट हमें अपनी प्रिपरेशन इसके अराउंड परफेक्ट रखनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे आ गए तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हमें हमारा एप्टीट्यूड इतना ज़्यादा हो इसमें कि हम उसको बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएँ. तो इसमें आई वुड जस्ट से कि जब आप अपना डैब भर रहे हो उसमें यू हैव टू फिल थिंग्स दैट यू हैव योर एप्टीट्यूड इन. जैसे मेरे स्पोर्ट्स मैंने कोई ज़्यादा खेला नहीं था, तो मैंने स्पोर्ट्स अपने डैफ में मेंशन नहीं किया था. वो दैट होल रो वाज ब्लैंक, डिस्पाइट सम पीपल टेलिंग मी कि कोई भी स्पोर्ट भर दो, क्रिकेट भर दो, कुछ जो टीवी पे देखते हो वो भर दो. बट आई फेल्ट कि आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस बिकॉज आई डोंट हैव एप्टीट्यूड इन दैट सब्जेक्ट. तो ट्राई टू fill in what you have your aptitude in. Secondly, I would also say that don't add superfluous things to your DAF. If you want, you can subtract things from your DAF. जैसे मैंने कॉलेज में ड्रामेटिक्स बहुत किया है एंड डिस्पाइट दैट मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है. अगर मेरे को ड्रामेटिक्स से कोई क्वेश्चन पूछ ले, जैसे किसने ये क्या आपने प्लेज देखते हो या कोई प्ले राइट्स के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ ले मेरे से, तो मुझसे नहीं हो पाएगा वो आंसर. तो मैंने हॉबीज़ में ड्रामेटिक्स मेंशन नहीं किया था, उसको मैंने अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स में कर दिया था.
तो वही मैं कहना चाहूँगा कि आप उन्हीं सब चीज़ों को डालिए जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं एंड जिसके लिए आप प्रिपेयर कर पाओगे, जिसमें आप इंटेलिजेंटली आंसर कर पाओगे, रादर देन दोज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. तो आई वुड से कि डोंट ऐड स्टफ टू योर डैफ, बट इफ़ यू वांट यू कैन सब्ट्रैक्ट व्हाट यू डोंट हैव एन एप्टीट्यूड इन. नेक्स्ट, जो डैफ में बहुत माइन्यूट डिटेल्स होती हैं उस पर भी हमारा एप्टीट्यूड होना चाहिए. जैसे मेरी क्लास 12 में संस्कृत थी. अब जो सब्जेक्ट्स हम मेंशन करते हैं अपने डैफ में, उसमें मैंने क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट्स मेंशन कर दिए थे, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड संस्कृत. Sanskrit was the last subject I had mentioned, but one of the interviewers looked at that and they asked me to recite a shlok in Sanskrit. तो मतलब छोटी, he told me कि आपने 12th में संस्कृत करी हुई है तो आपको तो आता ही होगा. And I had prepared for that because हमें अपनी डैफ की हर छोटी से छोटी चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करना है. तो डैफ में वही लिखिए जो आप प्रिपेयर कर पाएँ. नेक्स्ट, एप्टीट्यूड इज़ नॉट जस्ट फ्रॉम योर डैफ बट ऑल्सो हमारा GS का नॉलेज, करंट अफेयर्स का नॉलेज, ये सब. तो अब GS का तो हम ज़्यादातर प्रिपेयर कर ही लिया है अपने मेंस की प्रेप में, एंड वो आपको प्रूव भी हो गया कि आपने मेंस क्लियर किया है तो GS तो आपको आता ही होगा. बट स्टिल अब हमारा एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए हमें थोड़ा सा GS पढ़ना पड़ेगा, जैसे इकोनॉमी हो गया, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये सब हमें प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा. नेक्स्ट, जो चीज़ें हम यूजुअली UPSC के लिए प्रिपेयर नहीं करते, जो हम एडिटोरियल्स हिंदू में छोड़ देते हैं कि ये तो बहुत पॉलिटिकल या कंट्रोवर्शियल है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, वो सब भी हमें प्रिपेयर करना होता है इसमें. एंड वी हैव टू फॉर्म कॉन्क्रीट ओपिनियंस कि हमारा इस पे क्या ओपिनियन है, एंड यू शुड बी इवन रेडी फॉर क्रॉस क्वेश्चंस ओवर देयर. तो द बेस्ट सोर्स फॉर दैट इज़ अ न्यूज़पेपर अगेन. एंड न्यूज़पेपर में जो हम प्रीलिम्स मेंस के लिए छोड़ देते थे, हमें इंटरव्यू के लिए वो भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. एंड मैंने न्यूज़पेपर में प्रीलिम्स और मेंस के लिए कोई नोट्स नहीं बनाए थे, बट इंटरव्यू के लिए मैंने अच्छे से नोट्स बनाए थे, क्योंकि जो ओपिनियंस एडिटोरियल्स में जो सो लर्नेड पीपल हु राइट द एडिटोरियल्स देते हैं, विच दे आर वेरी वेरी नाइस एंड दे कैन ईजिली बी यूज्ड इन योर आंसर्स. नेक्स्ट, हाउ, मतलब ये इसी को कंटिन्यू करते हैं, हाउ टू बिल्ड ऑन ऑल दीज कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स वगैरह. न्यूज़पेपर्स देखो, पॉडकास्ट सुनो. देयर इज़ अ पॉडकास्ट कॉल्ड 3 Things by the Hindu. There is also, sorry, by the Indian Express, and there is one the Hindus podcast as well. वो मैं सुनता था, कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी जिम में हूँ मैं, तो ये सब सुन लेता था मैं. बाकी मैं RS-TV डिबेट्स भी देखता था. दे हैव अ वेरी, मतलब जैसे RS-TV में आंसर्स होते हैं, राइट, आई फील कि वैसे ही आंसर्स हमें इंटरव्यू में देने होते हैं. वेरी नुआंस्ड एंड नॉट अटैकिंग एनी साइड, बट टेकिंग अ very nuanced and sane approach towards the issues. And lastly, discussions with your peers. I'll come to that as well in a later part of the video, but discussions with peers भी बहुत important रहता है. एंड या जो ट्रांसक्रिप्ट्स आती हैं इंटरव्यू की, वो भी डिस्कस कर सकते हैं. एक ग्रुप बना होता है टेलीग्राम पे, जहाँ पे जो भी इंटरव्यू दे के आते हैं वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोड कर देते हैं कि उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, तो वो भी डिस्कस कर सकते हो आप फॉर बिल्डिंग अ बेटर एप्टीट्यूड. अब एप्टीट्यूड से मेरे इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे. जैसे संस्कृत का मैंने आपको बताया, मुझसे श्लोक पूछा गया था. बाकी पॉलिटी से मेरे को डिलेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ऊपर कमेंट करने को बोला गया था. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विच वॉज अ पार्ट ऑफ माई डैफ, उस पर मेरे को काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे. द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आई फील फॉर द इंटरव्यू इज़ आर एटीट्यूड. As I said, we have to prepare our DAF with honesty, and throughout our interview preparation we have to be honest to ourselves and to the person we are speaking to. The people in the board are very very experienced. They have taken hundreds of interviews probably just before you, and they will be able to catch whether you are bluffing or not. So it's most important to be honest during the interview. I remember the chairperson of my board, the first thing that he said when I sat there was, if you do not know something, it's okay, we are all humans. We cannot know everything, so it's important that you tell us if you do not know something, and that is completely fine. So we need to be honest there as well. And again, in the DAF also, do not fill anything that you are not actually pursuing. So that is what I'd like to say. Second attitude that we need to keep is keeping our ideologies aside. When we go into the interview, our political or other ideologies should not play a role there. We have to think like a civil servant. We have to put yourself in the shoes of a civil servant and see how they would solve problems, rather than attacking any side as such. Next, I would say, is to immerse yourself in the interview preparation. What I mean by this is to try to enjoy your prep. For example, I am from Delhi, and I had to prepare about Delhi, and I realized I went to one interview and they told me that
how can you call yourself a Delhiite if you have not visited Rajghat or Red Fort and all. So I actually went and visited these places, and it was a very fun experience for me as well. So yeah, I think you should immerse yourself in the preparation, try to know a little more about yourself, about your personality. It's not just a time for preparation of your interview, it is also going to give you a lot to remember in the future. So yeah, that is the one I'd say. Next I would say is learn from people, especially those who you feel are better than you in something. Every one of us is better than us in something. So for example, my first preference first preference was Indian Foreign Service, and I do not have a background of international relations or political science, and a lot of people say that these kinds of questions will be asked to you in the interview if your first preference is Indian Foreign Service. So what I did was I joined a group, a discussion group of students who had PSIR as their optional, and I used to listen to them. I used to say how I used to see how they are telling answers. If they told some point which I did not know, I used to note it down. तो मैं ये सब करता था. मैं ऐसा ट्राई करता था कि अपने से जो जिसमें मेरे से बेटर हो मैं उनसे कुछ सीख सकूं एंड उनको कुछ सिखा भी सकूं इन टर्न. इट्स ऑलवेज अ टू वे थिंग. तो ऐसा हेल्दी कंपटीशन टाइप से डेवलप करोगे तो सही रहेगा. डिस्कशंस वगैरह में भी ट्राई टू हैव अ वेरी हेल्दी कंपटीशन. अब देखो इतने सारे लोग इंटरव्यू में अपने खुद की इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट डाल देते थे टेलीग्राम ग्रुप पे, सो दैट इट कैन हेल्प देयर कॉम्पिटिटर्स ओनली इन दैट. सो इससे ज़्यादा हेल्दी कॉम्पिटिशन क्या ही हो सकता है. उससे एटीट्यूड पे भी मेरे से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे इन दी इंटरव्यू, स्पेशली रिलेटेड टू एथिक्स. फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग वॉज वन ऑफ माई हॉबी. सो द इंटरव्यूअर सेड कि आप टीचिंग आपकी हॉबी है तो आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, तो आप ये बताइए कि इन द पास्ट आपने ऐसे क्या लाइफ में किया है कि आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को भी हेल्प किया है. तो आई हैड टू थिंक एंड आई हैड टू से समथिंग इन दिस. सेकेंडली, एथिक्स ऑफ अ सिविल सर्वेंट पे भी मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि एज अ सिविल सर्वेंट हम किसको अकाउंटेबल हैं. हम अपनी जॉब को अकाउंटेबल हैं, सोसाइटी को अकाउंटेबल हैं, किसको हम एग्जैक्टली अकाउंटेबल हैं. बाकी एथिकल क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो आई वाज आस्क्ड. फॉर एग्जाम्पल, माई ओपिनियन ऑन एनकाउंटर किलिंग्स, Naxalism, terrorism, whether it is whether encounter killings are okay or not, and I was grilled a lot on the same topic. Secondly, I was also asked about warfare and artificial intelligence, whether AI should be allowed to be used in warfare or not. So these kinds of questions bring out your true attitude, so they help you prepare for the exam also. The third important component of our preparation and our actual experience should be our confidence. Now, confidence does not mean arrogance, and we need to ensure that we are confident but not arrogant. Now, what's the difference between the two? For example, if they ask something about some problem in our country, for example poverty or issues related to security of women or something, confidence would be to have a positive approach for the future, to accept that yes, there are problems right now and we need to move forward, and but we are moving forward, and there are things that we are doing to improve that and have a positive hope for the future. However, arrogance would be कि नहीं हमारा तो सब ठीक ही है, जो भी बोलता है वो गलत बोलता है. It's good to accept problems as an administrator. अब अगर आपको सब कुछ सही लगेगा तो आपका कुछ काम ही नहीं बचेगा, राइट. आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड उनके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी निकालने पड़ेंगे. तो दिस इज़ आई वुड से कि हमें कॉन्फिडेंस अपना बरकरार रखना चाहिए. सेकेंडली, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एज वेल. अपने आंसर्स से कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अगर आपका डैफ में कुछ लिखा है आपने एंड आंसर करते टाइम आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो उससे तो इंटरव्यूअर के ऊपर इंप्रेशन तो ख़राब ही जाएगा, राइट. कि ये जो इतना पसंद है इसको, उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, तो हमने कुछ नया से पूछ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आंसर्स पे भी कॉन्फिडेंस रखना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी कंट्री पे कॉन्फिडेंस रखना है. नेक्स्ट इज़ अबाउट एजुकेशन, एंड दिस वाज आस्क्ड टू मी अ लॉट ऑफ टाइम्स कि आई एम फ्रॉम एन IIT. नाउ देयर आर मेनी कैंडिडेट्स हु आर नॉट फ्रॉम IITs और हु आर from a background which is not as high ranking in the NIRF or something, so to speak. I don't think that plays much of a role in the interview. बिकॉज आपने भी मेंस क्लियर किया है, एक IIT या अच्छे कॉलेज वाले ने भी मेंस क्लियर किया है, तो यू आर बोथ एट द सेम लेवल राइट नाउ. तो यू डोंट हैव टू बी बॉक्ड डाउन बाय द फैक्ट कि वो IIT से है, वो यहाँ से है, वो यहाँ से. आपको
आपको अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. स्टॉप थिंकिंग अबाउट हु योर कॉम्पिटिशन इज, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड आप अपने आप को क्यों कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. वो एक क्लीशे रहता है कि यू आर योर ओन कॉम्पिटिशन, बट आई फील कि यहाँ पे वो अच्छे से अप्लाई होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे अगर मैंने IIT से इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है और उन्होंने मुझसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन पूछा एंड मैं वो आंसर नहीं कर पाया, तो उससे मेरे कॉलेज मतलब व्हाट डज इट दैट शोज अ वेरी बैड इम्प्रेशन, राइट, कि ये IIT से इसने एजुकेशन करी है बट ये अपनी एजुकेशन के बारे में नहीं बता रहा, तो दैट एक्चुअली गिव्स अ मोर नेगेटिव इम्पैक्ट एज कम्पेयर टू पॉजिटिव. आई डू फील कि IIT से हो तो शायद एक इम्प्रेशन टाइप्स बन जाता है कि ही शुड बी वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आपके आंसर्स ही मैटर करते हैं कि वो रिफ्लेक्ट होता है या नहीं. आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है एंड वी आर ऑल ऑन द सेम स्टेज वंस यू हैव रीच्ड द इंटरव्यू, तो यू शुड keep that in mind while preparing. Next is about skills, whether soft skills, having good hobbies, all these play a role in the interview or not. इसमें भी मैं सेम बात करना चाहूँगा. अगर आपकी हॉबी आपने किया है सपोज ड्रामेटिक्स, बट आप ड्रामेटिक्स के क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पा रहे, तो उस हॉबी का क्या फ़ायदा, उससे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट ही ज़्यादा पड़ा है. एंड सपोज समवन इज़ फ्रॉम रूरल एरिया वर्सेस फ्रॉम एन अर्बन एरिया. A rural area का person would know वहाँ की problems better, and I'm sure the questions will also be centered around that. I come from Delhi, so I was asked a question in the interview कि how do we make Delhi a global hub? Now this is a very relevant question because India's independence has just reached 75 years and हमें अपने भी cities को improve करना है. Urbanization की problems होने वाली हैं आगे जाके, तो इट वॉज अ रेलिवेंट क्वेश्चन बट रिलेटेड टू माई बैकग्राउंड. एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि अगर सपोज लद्दाख में कोई ट्राइबल्स हैं जो कोई अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड हमें वो सिटीज़ में लेके आना है, लाइक दिल्ली में सपोज उसको पॉपुलराइज करना है, तो हम क्या करेंगे. एक और क्वेश्चन था कि अगर हम रूरल एरियाज़ में हम एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं. अब इसका जो मैंने आंसर दिया होगा दैट वुड बी अ लिटिल मैकेनिकल बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया ये खुद, बट अगर आप आंसर करेंगे, कोई रूरल बैकग्राउंड का इंसान इसको आंसर करेगा, तो दैट विल बी अ मच बेटर आंसर आई फील. तो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनके लिए आप बहुत अच्छे आंसर दे सकते हैं एंड ये माइंड में रखिए. तो ये ज़रूरी नहीं है कि रूरल बैकग्राउंड या अर्बन बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम है, बस यही है कि आप कुछ चीज़ों में ज़्यादा बेटर होंगे और उस चीज़ में आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर करिए, तो ही आपका आंसर बाकी लोगों के आंसर से अलग होगा. दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये भी कहा जाता है कि क्लोथिंग ड्रेसिंग सेंस ज़्यादा हैंडल अच्छी हो पाती है इफ़ यू आर फ्रॉम अ गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, बट मेरे केस में तो ऐसा नहीं था. मेरे फॉर्मल्स पहनने का ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस था नहीं. सब मैंने मॉक्स के थ्रू ही देखा कि जैसे मॉक्स में किसी ने मेरे को बताया कि ऐसे बैठते हैं, ऐसे नॉक करते हैं, ऐसे जब बैठो तो ब्लेज़र का बटन खुलना चाहिए, जाने से पहले ऐसे बंद होना चाहिए. तो ये सब मैंने मॉक्स के थ्रू ही सीखा एंड कोई भी सीख सकता है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीकिंग, तो मेरे हिसाब से अगर आपका सपोज इंटरव्यू का मीडियम इंग्लिश है, मेरा इंटरव्यू का मीडियम इंग्लिश था, मेरे इंग्लिश आई वुड से कि ठीक ठाक है, तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई. बट फॉर दोज हु डू नॉट नो इंग्लिश दैट हु आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश दैट वेल, उनके लिए मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा मतलब डिस्कशंस करिए इंटरव्यू के प्रेप के टाइम, डिस्कशंस करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपना एक ग्रुप बनाइए. एम्बैरेस मत हो कि यू आर नॉट एबल टू स्पीक एज वेल एज अदर्स. धीरे धीरे करके ही इम्प्रूव होगा एंड आपको वो खुद इम्प्रूवमेंट दिखेगी विद टाइम. तो एम्बैरेस बिल्कुल नहीं होना है. बी विद पीपल हु आर बेटर देन यू हियर ऑल्सो, मतलब जो आपसे भी अच्छी इंग्लिश बोल सके, उनके साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए. जितना हो सकता है उतना ठीक है. बाकी तो आपको आइडियाज़ को वर्ड्स में प्रेजेंट करना आना चाहिए. अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है खुद से प्रेजेंट करना, बट अगर आप नहीं भी होते तो थोड़ा बहुत सीख सकते हैं. तो ऐसी कोई बात नहीं है. अगर आपका मीडियम हिंदी है उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज हम जो डेली लाइफ में बोलते हैं वो तो उसमें कुछ इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, कुछ हिंदी वर्ड्स होते हैं. इट्स अ वेरी इनफॉर्मल काइंड ऑफ स्पीच. तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थ्रू डिस्कशंस, थ्रू मॉक्स. इफ यू एक्चुअली वांट यू कैन इवन स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर फॉर 2-3 मिनट्स एवरी डे. उसे भी आप देख सकते हैं कि आपका इम्प्रूव हो जाएगा धीरे धीरे करके. तो यही ये
5 skills I would say are very important for the interview. I would like to end this session by saying that try to enjoy your interview prep and try to leave your comfort zone as well. You are not good in a few things, so be with people who are better in that and try to leave your comfort zone and try to learn those things. Thank you so much.